Good morning. Welcome in Manju Biology's classes. And we have started yesterday the topic biology of class plus 1. I have taken some basic concepts of biology and fathers of biology and different branches of biology. Okay, let us revise the previous class. Biology, study of life or living organisms. Okay, branches, main two branches, botany, zoology. Botany, it is the study of plants. Zoology, study of animals. Who is the father of biology? Tell me. Aristotle. Who is the father of biology? Aristotle. Who is the father of botany? Theophrastus. Students, what do you mean by paleontology? Logy means study and paleonto means fossils, study of fossils. Who is the father of paleontology? Leonardo da Vinci. Eugenics, study of human races. Who is the father of eugenics? Francis Galton. Father of immunology, Edward Jenner. Okay. Father of genetics, Gregor Johann Mendel or G.J. Mendel. Father of modern genetics, Thomas Hunt Morgan. Okay. Father of microbiology, Anton von Leeuwenhoek. Father of bryology, Kashyap. Father of modern embryology, Baer, von Baer. And who coined the term biology? Lamarck. Let us start with our today's class. Started with the next topic. We have left some topics from yesterday's class. Father of biotechnology. Father of biotechnology, Carolee Iricky or Ricky. Carolee Ricky. Father of biotechnology, Carolee Ricky. Who coined the term ecology? Ernest Haeckel. Who coined the term ecology? Haeckel. These all terms comes in the competitive exams and these are very important. Okay. Term ecology given by Ernest Haeckel. Who gave the term ecosystem? Tansley. Term ecosystem, Tansley. Who is the father of Green Revolution in India? Father of Green Revolution in India. This question is very important from the competitive point of view. Father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. Okay. Father of Green Revolution in the world, Borlaug, Norman Borlaug. Father of Green Revolution in the world, Norman Borlaug. Who is the father of genetic engineering? Paul Berg. I will clear all these terms in the next topics. Okay. So this time remember only the fathers of these terms. Father of genetic engineering, Paul Berg. Father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. Father of Green Revolution in the world, Borlaug. Father of genetic engineering, Paul Berg. Who make the first recombinant DNA? Recombinant DNA. Stanley Cohen and Herbert Boyer. Cohen and Boyer. You can learn only these two names, Cohen and Boyer.
Who make the first recombinant DNA? Cohen and Boyer. Revise these again. Who is the father of biotechnology? Reiki. Who gave the term ecology? Ernest Haeckel. Who gave the term ecosystem? Tansley. Who is the father of Green Revolution in India? M.S. Swaminathan. Who is the father of Green Revolution in the world? Norman Borlaug. Who is the father of genetic engineering? Paul Berg. Who make the first recombinant DNA? Cohen and Boyer. Now let us start with our NCERT. Class +1, Chapter 1 from Unit 1st, Chapter 1, The Living World. And the name of unit is Diversity in the Living World. Okay, I will take all the lines which are important, and this topic is of very less marks, but we have to clear all the concepts. Okay, don't worry, I will tell which one are important or which one are not. Okay, diversity means variations या variety of organisms occur in the world. Differences, diversity means variations. And what are variations? Variations means differences occurs in the living organisms. Okay, so we will start with chapter 1, the living world. Okay, living world, and in this the first topic is what is living. Okay, what is living? So when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of the living organisms. इसका मतलब है कि जब भी when we try to define living, कि जब भी हमारे दिमाग में लिविंग वर्ल्ड आता है तो हम लिविंग के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके बारे में हम दिमाग से सोचने लग जाते हैं कि क्या क्या करेक्टर्स हैं. कई एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं. लेकिन इन सब में लिविंग के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, है ना. और अगर हमें कोई बाहर से कोई जैसे कि एक्सटर्नल कोई भी माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड एज यूनिक फीचर, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, जैसे कोई हमें डरा रहा है तो हम एकदम से क्या करेंगे. ठीक है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हम डर जाते हैं, हमें स्वेटिंग हो जाएगी. तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं. इसमें से कुछ भी अभी तक लिखने का नहीं है. ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं है कि जो आपको लिखना होगा या आपको आएगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि इस टॉपिक में है क्या. देन one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. ठीक है, तो क्या क्या आएंगे. ग्रोथ आया, रिप्रोडक्शन आया, एबिलिटी आया कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, समझते हैं, है ना, और हम रिस्पॉन्स देते हैं. मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, वो ग्रो करता है. ठीक है, पहले जाइगोट होता है, सिंगल सेल होता है, लेकिन वो जाइगोट कैसे कैसे उसमें सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, तो कैसे नए सेल्स बन रहे हैं. लेकिन एक एज्ड पर्सन है, उसमें कैसे वो जो सेल्स हैं या हमारी एक्टिविटीज कैसे वो ब्रेक डाउन होती हैं. ठीक है, तो वो एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म का जो सम होता है वो होता है मेटाबोलिज्म. मेटाबोलिज्म इज द सम ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म.
एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स जैसे हमारा एक सेल होता है उसमें डीएनए होता है, हमारा वो जो डिवाइड होता है जब सेल, तो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3, इसी तरह से हम लोगों के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज की हमारे अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबसे इंटरेक्ट होते हैं। एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। तो नंबर 1 कैरेक्टर है बच्चों, अभी इसमें से कुछ भी लिखने का नहीं है, सिर्फ आप अंडरस्टैंड कीजिए, जब कुछ आएगा तो मैं आपको खुद से टिक करवाऊंगी। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब होता है जैसे कि एक स्टोन है वो थोड़ी ना ग्रो करेगा, वो नॉन लिविंग है। हम लोग होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कि ग्रोथ के 2 कैरेक्टर्स हैं, या हमारा मास बढ़ेगा, ठीक है, साइज में फर्क पड़ेगा, या इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। A multicellular organism grows by cell division। हमारी बॉडी में जैसे हम मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है, हम बैक्टीरिया की तरह है ना, उनकी तरह अमीबा की तरह वी आर नॉट सिंगल सेल्ड, है ना। तो हम लोग जो ग्रो करते हैं मल्टी सेल्यूलर हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमें। तो जो भी हम लोग क्या होते हैं, हम ग्रो करते हैं कैसे, सेल डिवीजन से। जैसे हमने बोला इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। और मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करेगा, बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो ग्रोथ है बाय सेल डिवीजन वो पूरी उम्र होता रहता है। बोला प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं या 2 ऑप्शंस दी होती हैं कि इनमें से ऑर्गेनिज्म चूज करो जो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है फुल लाइफ टाइम के लिए, तो आप किसको टिक करके आओगे, प्लांट्स को। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में बोला कि ये जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होती है। लेकिन जो है सेल डिवीजन अक्कर इन सर्टेन टिश्यूज, हाउएवर सेल डिवीजन अक्कर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, वहां हमारा सेल्स ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां पे सेल डिवीजन होके नए सेल्स बनते हैं, तभी स्किन जुड़ती है। हमें हमेशा थोड़ी ना कट दिखाई देते हैं, वो जुड़ चुकी होती हैं। लेकिन एनिमल्स में सेल डिवीजन होता रहता है लॉस्ट सेल्स को। ये थोड़ी ना है कि अगर कोई एज्ड हो जा रहा है, बुढ़ा हो जा रहा है और उसको कट लगता है तो वो उसको वो सेल्स ही नहीं वहां पे ग्रो करेंगे, पर उनका जो रेट होता है, ठीक है, डिवाइड करने का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। One can easily observe this is in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशंस में हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स काउंट करके उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें सिंगल सेल्स ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के अंदर उस चीज को, उनके सेल डिवीजन को हम देख सकते हैं। स्लाइड्स बनी होती है, आप उसमें देख सकते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, कि बॉडी मास की इंक्रीज को क्या बोला गया है, ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स, जैसे अगर हम इंक्रीज इन मास ही लेना हो तो जैसे पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, है ना, वो कई बार बोलते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हो गए। बॉर्डर सैंड माउंट्स, जैसे रेगिस्तान में रेत के पहाड़ कभी कहीं होते हैं, कभी ग्रो कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हवाएं चलती हैं वहां पे, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। अगर हमसे बोले इंक्रीज इन द बॉडी मास, कि मास ही बढ़ना हो उनका, ठीक है, साइज में इंक्रीज होना हो, तो एक पहाड़, रेत का पहाड़ भी तो बढ़ता है ना। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of materials on the surface। क्या जमा हो जाता है, नॉन materials जमा हो जाते हैं। In living organisms, growth is from inside। लेकिन हमारे वो तो सिर्फ बाहर से मटेरियल इकट्ठा होता है नॉन लिविंग में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। ग्रोथ देयरफॉर
कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे हैं, अंदर से करें बाहर से करें बट ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं, वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, उनका मास भी इंक्रीज होता है, बेशक वो बाहर से हो वेदर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, conditions under which it can be observed in non-living organisms have to explain, and then we understand that it is a characteristic of living organisms. Dead organisms does not grow. बोला dead organisms grow कर नहीं करते हैं, only living organisms जो हैं growth करते हैं, लेकिन इसको भी एक proper property है living organisms की नहीं है। तो let us end the class. Tomorrow I will start from the next topic, next defining property of the living organism, that is reproduction. Okay, thank you, have a nice day.